So a very good morning to everyone present here. Last day, I hope I taught you a very interesting topic and it was a nice way of speaking and talking. I will let you know some of the slangs, and slangs are those ways which are actually being used as per the trends and are stylish as well. Today also I'll let you know some of the slangs and we'll move further over the part of question words as well, but some of those question words which are used in different ways. So let us start some of the things you may be knowing, some of the things you may not be knowing, but it's my work to teach you all the things. As one of the things which you already have learned earlier, check out which will come on the screen of yours. But do you want to action? I hope the screen is very much. You can let me know this. Yes. So do you want to action this what you already have learned? Want to why we go for using here? Want to we just simply use to go for showing our desire. ये हमारी feelings की बात हो रही है और इसको हम पहले ही सीख चुके हैं. So as you already learned this and you must have spoken as well if you feel like asking to desire of someone, like do you want to speak English, do you want to come here, do you want to go to that class, do you want to action blah blah blah. Here just now let me make you a little more stylish, and this is the American slang I'm gonna tell you here. This want to which you go for using here at the place of what do the people completely go for using wanna. At the place of want to what you can use wanna. Just remember the wanna is what completely जहाँ पे want और to दोनों मिलकर आते हैं तो उसको हम wanna बोल देते हैं. So the sentence which you go for making do you want to at the place of that you can go for making do you wanna action. So it was the earlier used to use do you want to action. Now what you can use do you wanna action. Okay, that way you can go for adopting. Do you wanna action? Do you wanna speak English? Do you wanna study? Do you wanna go to market? Do you wanna take ice cream? Do you wanna start a business? Do you want? So wanna looks very much stylish. So you go for using this. This is what the American slang people use it a lot nowadays. But as per the slang, would use at formal places. Your exams, your studies, your knowledge, मतलब जो formal जगह होती है वहाँ पे use करेगा. Normal talking would watch you. ठीक है? So here now, सिंपल सी बात की समझने की want to को wanna बोलते हैं. अब सारी चीजों को आप wanna में people who used to go for using I want to speak English. At the place of that you can use I wanna speak English. I wanna take ice cream. I wanna attend party. I wanna enjoy myself. I wanna travel some new places. ठीक है? सेम जब आप मना करते हैं सो आई डू नॉट वांट टू एक्शन की जगह सारा शॉर्ट में कर दीजिएगा. डू नॉट हो गया डोंट और वांट टू हो गया वांना. आई डोंट वांट एक्शन. आई डोंट वांट टेल अ लाई. आई डोंट वांट फाइट. आई डोंट वांट अब्यूज. आई डोंट वांट आर्ग्यू. आई डोंट वांट गो एनीवेयर. आई डोंट वांट. राइट. सेम आगे बढ़ते हैं. जब दूसरी बात होगी तो डज ही वांट एक्शन. मना करेंगे ही डजंट वांट एक्शन. और जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे तो ही वांट्स टू एक्शन ही रहेगा. यहाँ पे वांट नहीं होगा. चेक. रिमेंबर वांट मैंने बताया we make in short for what want to. ठीक है. बट जब ही के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो want to नहीं आता, wants to आता है. इसलिए अब यहाँ पे wanna नहीं होगा. यहाँ पे सिंपल wants to होगा. want to भी शॉर्ट फॉर्म तो wanna है पर wants to की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. so you will be only using wants to. ठीक है. That's easy to understand. तो अब want to की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं wanna. That's it. If you feel like writing you can write. If you don't need you can let me know. We can move further. छोटा सा पॉइंट है बस कि आप want to की जगह wanna का यूज करना आप स्टार्ट कर सकते हैं. So let me know, do you understand this or shall we move further or not? Sure. Fine. Let us move further. And there's another one for you. Sentence बनाते हैं कुछ. Sentence है I'm going to action. अब यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस कुछ आपने शायद पहले भी बनाए होंगे लेकिन वो अलग होंगे. I am going to market, I am going to college, I am going to school, I am going to home, I am going to any place. आपने इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाए होंगे लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा अलग है. I am going to market, I am going to college, I am going to park, I am going to any place में आप टू के बाद जगह का नाम रख रहे थे. नाम क्या होता है नो एक्शन लगा रहे थे ना टू के बाद. लेकिन यहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्शन है मतलब टू के बाद एक्शन लग रहा है. तो ये जो सेंटेंस है वो जो सेंटेंस है दोनों में अंतर है. आई एम गोइंग टू स्कूल में आप फिजिकली जाने की सिर्फ बात कर रहे हो और कोई चीज नहीं होती. आई एम गोइंग टू एक्शन जो सेंटेंस होते हैं इसमें आप ये बताते हैं आपको फिजिकली मूवमेंट की बात नहीं हो रही होती है. हो जाए ठीक है नहीं हो जाए कोई बात नहीं. यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो आगे आपने एक्शन दिया है तो फर्दर एक्शन टू के बाद जो लगाया है आप ये बताते हैं कि आप ये काम अब करने वाले हैं. मतलब नेक्स्ट काम आपका ये होने वाला है. आप जल्दी कमिंग फ्यूचर में ये वाला काम करेंगे. जैसे आई एम गोइंग टू स्कॉल्ड यू तो क्या मालूम पड़ रहा है कि अब मैं स्कॉल्ड वाला काम करने वाला हूँ. अब मेरा अगला या नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में कौन सा काम होने वाला है स्कॉल्ड वाला.
आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू समथिंग न्यू, तो मतलब मैं कुछ नया पढ़ाने का काम करने वाला हूँ। तो गोइंग टू यहाँ पे एग्जैक्टली फिजिकल मूवमेंट के ऊपर बात नहीं करता, गोइंग टू ये बताता है कि आप नेक्स्ट कौन से काम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट कौन सा काम करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्शन इज द सेंटेंस जिसमें जल्दी ही आप कोई काम करने वाले हो, करने जा रहे हो या करना स्टार्ट करने वाले हो, तो वहां पे आई एम गोइंग टू एक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि कोई जल्दी ही कमिंग फ्यूचर में आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे जैसे अपने बारे में बताऊं, सो आई एम गोइंग टू लॉन्च माय बुक ऑन 24th ऑफ सितंबर, 24 सितंबर डिसाइड हो गया है मेरी बुक को लॉन्च करने के लिए, तो आई एम गोइंग टू लॉन्च माय बुक ऑन 24th ऑफ सितंबर। अमेजोन में प्री बुकिंग ऑर्डर पहले से स्टार्ट हो जाएंगे, जो लोग खरीदना चाहते हैं डिस्काउंटेड रेट में, लॉन्च करने से पहले हम कुछ डिस्काउंट चलाएंगे अमेजोन वगैरह पे, जहां से लोग प्री बुकिंग कर सकते हैं, और जिस दिन लॉन्च होगा, अगर हम किसी बढ़िया जगह पे लॉन्च करेंगे उस दिन वहां से वो रिसीव कर सकते हैं, मतलब बहुत कम प्राइस में मिलेगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा उससे पहले, लॉन्चिंग से पहले, लॉन्चिंग के बाद फिर जो ओरिजिनल प्राइस होगा उससे मिलेगा। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च, जैसे मेरी बुक लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट मंथ मैं एक नया बिजनेस और स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट आई कैन। द सेम ऐसे आप भी मुझे बता सकते हैं, अगर आप कोई काम जल्दी करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, यू कैन प्लान, यू कैन टेल मी, ठीक है। एक सेंटेंस लिख के बताएंगे जल्दी से मुझे, व्हाट यू गोना डू, क्या करने जा रहे हैं आप, जल्दी से बताएं। टेल मी, क्या मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं आप लोग? इतना सन्नाटा क्यों भाई? I'm going to take breakfast. Pratik speaks, I'm going to take breakfast. Ankur say, I'm going to take food. सुबह सुबह food, breakfast, चलो breakfast करते हैं. And अजय speak, I'm going to next month on ITC. अजय ये सेंटेंस मैंने इसीलिए करवाया था ताकि आपको समझा सकूं कि कुछ चीजें गलत हो जाती हैं. I'm going to, आप देखें going to के आगे एक्शन लग रहा है और आपके सेंटेंस में कहीं तो कोई एक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, आप वो वाला सेंटेंस बना रहे हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट वाला, एंड ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्शन बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैं लिखवाने की बात कर रहा था। फातिमा का ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लीन माई होम, बाकी सबका ठीक है। अजय योर सेंटेंस इज रॉन्ग, मेक इट करेक्ट, आई एम गोइंग टू ITC, आई एम गोइंग ऑन ITC नेक्स्ट मंथ, ये किसी जगह को दिखाने वाले सेंटेंस है, किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं आप, फिजिकल मूवमेंट की बात हो रही है। लेकिन आई एम गोइंग टू एक्शन इज द सेंटेंस जहां पे आप ये बताते हैं नेक्स्ट काम कौन सा करने वाले हैं, तो उसमें टू के बाद एक्शन ही लगेगा। तो जस्ट मेंड योर सेंटेंस एंड जस्ट गो फॉर मेकिंग द न्यू वन। अभी आप क्या कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू, वो काम ये हो सकता है कि यहाँ पे जो गोइंग टू है, इस गोइंग टू को यू कैन कन्वर्ट इनटू गोना, इस गोइंग टू को आप बोल सकते हैं गोना, बट रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग, जिस तरह का सेंटेंस अभी अजय ने बनाया था उस वाले सेंटेंस में गोइंग टू की जगह गोना नहीं हो सकता। अगर आप ये बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें गोना नहीं होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें गोना नहीं होगा। आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसमें गोना नहीं होगा। आई एम गोइंग टू स्टडी, इसमें गोना हो जाएगा। कहाँ पे गोना होगा गोइंग टू का? जहाँ पे टू के आगे एक्शन लग रहा होगा, जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि ये वाला काम करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ। जहाँ पे फिजिकल जाने की कहीं भी बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू मार्केट, वहां पे कोई गोना नहीं होगा। रिमेंबर गोना जो सेंटेंस है इसलिए बोला जाता है ताकि आप ये बता सकें कि कौन सा काम कमिंग फ्यूचर में आप करने वाले हैं, किसी जगह पे जाने के लिए गोना नहीं होगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस जरूर आप समझ के चलिएगा, तो गलतियां हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना गोइंग टू के 4-5 सेंटेंस बताता हूँ, और उसमें से किस में गोना होगा और किस में गोना नहीं होगा, आप उस तरह से लिखते चलिएगा मुझे चैट बॉक्स में। आपको लगता है इस वाले में गोना होगा तो गोना कर देना, और नहीं लगता है तो सिंपल लिख दीजिएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि आपको सच में क्लियर हुआ है नहीं हुआ। चलिए, आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू कोचिंग, इसमें फातिमा सैद कहती हैं गोना नहीं होगा, प्रति कहती हैं गोना नहीं होगा, कुछ भी कह रही है नहीं होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फूड, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फूड, इसमें गोना होगा, राइट। फातिमा कहती है नहीं होगा, गति कहती है होगा, फातिमा फिर से कह रही होगा। ठीक है, इसमें गोना होगा, डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट लेते हैं, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, इसमें गोना होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ग्रेट। आई एम गोइंग टू वर्शिप, इसमें गोना होगा या नहीं होगा?
होगा। यस, ठीक है, फाइन, यू अंडरस्टैंड वेल, आपको समझ में आ रहा है कि आप कमिंग फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हैं तो वहां पे गोइंग टू की जगह गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दैट्स अ नाइस सेंटेंस, आप इसको बोलकर देख लें। हाँ, गोना एक्शन। अब देखो एम तो लगेगा क्योंकि ये गोना है क्या, एग्जैक्टली गोइंग टू है, गोइंग टू मतलब आईएनजी की फॉर्म वाला, तो आईएनजी जहाँ पे लगता है वहाँ पे एजमा और बहुत बड़े इस्तेमाल में आते हैं। नाउ गोना एक्शन, अब आप देखो इसके तुम ना बड़े बढ़िया सेंटेंस बना सकते हो। आई एम गोना टेल यू समथिंग, आई एम गोना टीच यू समथिंग वेरी न्यू, आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आई एम गोना वर्क हार्ड, आई एम गोना स्टार्ट जिम, आई एम गोना start doing exercises, I'm going to take rest, है ना, I'm going to take medicine now, so I'm gonna, कितना बढ़िया सा लग रहा है। सेम और सेंटेंस आप इनके बना लीजिए, प्रश्न पूछना है तो प्रश्न बनेगा आर यू गोना एक्शन, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आई एम गोना एक्शन वाले में ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये आर यू गोना एक्शन वाले में लगेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, तो मैं आपको बता दूं, याद रखना क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लगेगा। तो आर यू गोना एक्शन आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं आर यू गोना टेक ब्रेकफास्ट, आर यू गोना टेक रेस्ट, आर यू गोना टेक बाथ, आर यू गोना स्टडी, आर यू गोना कंप्लीट योर होमवर्क, आर यू गोना मीट मी, आर यू गोना गिव मी पार्टी, मतलब इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मना करना है तो मना कर दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू एक्शन, ये पूरा होगा। और एग्जैक्टली आई एम नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं एंट, गोइंग टू को बोलते हैं गोना, तो कितना छोटा सा सेंटेंस हो गया। जो आप पहले बोला करते थे आई एम नॉट गोइंग टू टेक बाथ, अब हो गया आई एंट गोना टेक बाथ। जो पहले बोला था आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, नाउ इट कैन बी आई एंट गोना स्टडी, है ना। जो पहले बोलते थे आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फूड, नाउ दिस विल बी आई एंट गोना प्रिपेयर फूड। जो पहले बोलते थे आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड, नाउ दिस विल बी आई एंट गोना वर्क हार्ड, है ना, कितना मजेदार। ही के लिए बना दीजिए, ही के लिए बस इसका इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक है, सेम रहेगा। इज गोना एक्शन, ही इज गोना एक्शन, ही एंट गोना एक्शन, अंडरस्टैंड। बढ़िया है, इजी है, मजेदार है, न्यू स्लैंग। आई एम गोना फोल्ड द क्लोथ्स, या पार्टनर राइट, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ऑफ गोना, गोना गोना, आज दोनों मिल गए आपको। You understand? Do you want to write something? Shall we move or not? Let me know all these answers. If you have understood this well, I'm gonna tell you something new. देखो gonna का इस्तेमाल हो गया ना, I'm gonna tell you, I'm gonna teach you something new. Great. I think we shall move further now. अच्छा चलो, I'm gonna take a screenshot. ये फातिमा बहुत intelligent. Here now, got it? Yeah. Let's make one sentence. एक सेंटेंस बनाते हैं, सभी लोग बनाइएगा ना चैट बॉक्स में, you'll be writing. First, he कॉलेज जाता है, ही कॉलेज जाता है। ही कॉलेज जाता है, वेरी रॉन्ग फातिमा। ही कॉलेज जाता है क्या सेंटेंस होना चाहिए? अजय राजपूत, बहुत बढ़िया गलत सेंटेंस बनाया आपने, या कृति का सेंटेंस ठीक आया है, कुलसुम का सेंटेंस भी गलत आया है। ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, सत्यानाश पीट दिया मेरा पढ़ाई लिखाई का अभी तक जो पढ़ाया था आपको। ही कॉलेज जाता है तो सिंपल सेंटेंस वुड बी ही गोज टू कॉलेज, ही स्पीक्स, ही कम्स, ही रीड्स, सिंपल वाला सेंटेंस है, ही गोज टू कॉलेज। यस, अभी सॉरी सॉरी हो रहा है, पहले गलत कर दिया सारा। ही गोज टू कॉलेज। नेक्स्ट अगर सेंटेंस में चाहूं ही कॉलेज जा रहा है तो क्या बनेगा? ही कॉलेज जा रहा है, इज गोइंग टू कॉलेज। अब ठीक है, चलो। ही कॉलेज गया था, ही कॉलेज गया था, ही वेंट टू कॉलेज। और ही कॉलेज जाएगा, ही कॉलेज जाएगा, उसके लिए क्या होगा? he will go to college. That's right, that's right. अब देखो हमें यहाँ पे ये सेंटेंस पता है, we making this sentence for he, तो हमने he के रूल लगा दिए। अगर हमें ये बताना होता है ये सेंटेंस किसके लिए हम बना रहे हैं, he भी हो सकती है, she भी, he भी हो सकते हैं, she भी हो सकती हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे से ही को हटाएंगे, और ये अगर जानना चाहे कि ये वास्तव में काम हम किसके लिए बोल रहे हैं या किसके लिए सेंटर बना रहे हैं, तो ही को हटा के व्हाट विल डू, चेक आउट, ये देखिए हो सकता है, शी गोज टू कॉलेज भी हो सकता है, हम यहाँ पे ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता नहीं किसके लिए है, तो अननोन पर्सन को जानने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल ऐसे सेंटर बनाइए जैसे ही के लिए बना रहे हैं, शी के लिए बना रहे हैं, और ही और शी को हटा के वहां पे रख दीजिए हु, तो आपका सेंटर बन जाएगा हु गोज टू कॉलेज। ही गोज टू कॉलेज, ही कॉलेज जाता है, हु गोज टू कॉलेज, कौन कॉलेज जाता है, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोलता है, ही टेल्स अ लाई, ही झूठ बोलता है, हु टेल्स अ लाई, कौन झूठ बोलता है। तो जब भी आपको अननोन पर्सन जानने के लिए सेंटेंस बनाना हो, तो वहां पे आप सिंपल ही का सेंटेंस बनाइए, ही को हटा के हु रख दीजिए, हु का सेंटेंस बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब सारे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही कॉलेज जा रहा है, और मुझे पता ही नहीं कौन जा रहा है, तो मैं ही की जगह हु रख दूंगा, हु इज गोइंग टू कॉलेज, कौन कॉलेज जा रहा है। ही वेंट टू कॉलेज, ही कॉलेज गया था, और पता नहीं कौन है, तो हु वेंट टू कॉलेज, कौन कॉलेज गया था। सेम, ही विल गो टू कॉलेज, हु विल गो टू कॉलेज। चेक आउट, आ रहा है ना समझ में, कितना इजी सा है। बस आप ही के लिए सेंटेंस बनाइए और ही को हटा के हु रख दीजिए, हु का सेंटेंस बन जाएगा। कैन यू मेक द सेंटेंस, वो पूछूं कुछ सेंटेंस बनवाऊं आपसे, बना सकते हैं, कैन यू ट्राई, या तो एक सेंटेंस बनाते हैं, चलो। कौन लड़ाई करता है, कौन लड़ाई करता है, फातिमा, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, चेक आउट व्हाट इज रॉन्ग, कुछ गलती हो गई है, और गलती हो गई है। आप सारे सेंटेंस जो स्क्रीन पे लिखे हैं उनको चेक करो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या गलती है। कुलसुम, आपकी गलती तो बहुत बड़ी है, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है जिसमें एज एम आर आते हो और सिंपल एक्शन लगता हो, कोई सेंटेंस ही नहीं होता ऐसा इंग्लिश में। अजय, आपका भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आपको मैंने सामने स्क्रीन पे सेंटेंस लिखाए हुए देख, आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए सारे सेंटेंस को। कौन फाइट करता है, जस्ट मेक दिस सेंटेंस। अरे अभी से ही बनता है, आप मेरी बात समझिए नहीं मेरे ख्याल से, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। ही फाइट करता है, ही के लिए सेंटेंस बनाओ सिंपल, पहले ही फाइट करता है, मेक इट, ही के लिए सेंटेंस बनाओ, ही फाइट करता है, सिंपल सा सेंटेंस है। मेक द सेंटेंस, ही फाइट्स, आया फातिमा, ही फाइट्स होता है, इसी में से ही को हटा के बस हु को रखेंगे हम, तो बन जाएगा हु फाइट्स। ये छोटी सी बात थी, ही का सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा आपको। कृति का सेंटेंस ठीक है, अजय का अब सही आया है, बस ही फाइट्स में से ही को हटा के हु को रखेंगे, हु फाइट्स होगा। किसी ने तो ऊपर डू लगाया था, ही के साथ तो कभी डू आता ही नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड भी नहीं इस्तेमाल में आ रहा है, सिंपल डायरेक्ट एक्शन यूज कर दे रहे हैं, हु फाइट्स, ठीक है। चलो और दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं बनाकर। कौन खाना बनाता है, कौन खाना बनाता है। नाउ इट्स कमिंग राइट अजय, हु प्रिपेयर्स फूड, देखो है ना, तभी मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला आपको कि किसी के लिए भी सेंटर बना दो हु रख दो, मैंने बोला ही के लिए सेंटर बनाओ फिर हु रखना, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं ना कौन इस काम को करता है, सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर का रूल लगेगा, और सिंगुलर ही वाले रूल होते हैं, इसलिए हमने ही के लिए आइडिया आपको दिया। हु प्रिपेयर्स फूड, हु प्रिपेयर्स फूड बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट सेंटर बनाते हैं। कौन टीवी वॉच कर रहा है, कौन टीवी वॉच कर रहा है। अच्छा गलत हो गया सेंटेंस, थोड़ा सा सेंटेंस का डिफरेंस देख लिया करो। फातिमा इज करेक्ट, कुलसुम बिल्कुल गलत सेंटेंस, हु वॉच टीवी जैसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है कभी। कृति इज करेक्ट, अजय नाउ यू आर करेक्ट। कौन टीवी वॉच कर रहा है, मतलब इसमें काम चल रहा है, काम चल रहा है तो आईएनजी लगता है, आईएनजी के साथ इज हमारे का इस्तेमाल होता है। हु इज वॉचिंग टीवी, चूंकि हम बता रहे हैं कि ही के लिए रूल बनेगा, ही का रूल लगेगा, इसलिए इज हमारे में से इज आएगा इस्तेमाल में। हु इज वॉचिंग टीवी। कुलसुम गौर करो सेंटेंसेस पे, कहाँ का सेंटेंस बन रहा है। चलो और बनाते हैं।
कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? Who's sleeping? Right. चलो और बनाते हैं। कौन मार्केट गया था? कौन मार्केट गया था? Who went to market, है ना? सिचुएशन को समझना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा है। कौन पार्टी अटेंड करेगा? Who will attend party? Very nice. चलो एक राउंड और खेलते हैं इसी में, देखते हैं कितना समझ में आ गया। कौन कार ड्राइव करता है? कौन कार ड्राइव करता है? हम्म, अब समझदारी आ गई। वेरी नाइस, बढ़िया, होशियार हो गया। हु ड्राइव्स कार? कौन मार्केट जा रहा है? नाउ यू गॉट इंटेलिजेंट, जस्ट मेक इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब आप समझदार हो गए हैं। हु इज गोइंग टू मार्केट? वेरी नाइस। चलो और बनाते हैं। किसने अब्यूज किया था? किसने अब्यूज किया था? अब तो अजय के सारे सेंटेंस ठीक आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है गुट्टी पीली। हु अब्यूज्ड, बहुत बढ़िया, सभी सही है। और कौन पार्टी थ्रो करेगा? कौन पार्टी थ्रो करेगा? मेक इट, मेक इट। कौन पार्टी थ्रो करेगा? हु विल थ्रो पार्टी? थ्रो पार्टी समझते हैं ना? दूसरा का पार्टी दो, आपने पार्टी लिया, मुंह पे फेंक के दी, ये ले पार्टी। हु विल थ्रो पार्टी? चलो, यू हैव अंडरस्टूड वेल, बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। अभी यहाँ पे जो हमने हु का इस्तेमाल किया, ये था किसी अननोन पर्सन को जानने के लिए जो काम करता है। ठीक है, अब हम जरा पता करेंगे पोजेशन वाले सेंटेंस किस तरह से पता करते हैं। किसका पोजेशन है? पोजेशन का मतलब समझते हैं हम, पोजेस करना। क्या मतलब होता है पोजेस करने का? आप फातिमा बताइए, व्हाट डज इट मीन? मतलब पूछते ही फातिमा सदमे में चली गई है और उनकी आवाज नहीं आ पा रही है या फिर वो लिख नहीं पा रहे हैं। पजेस करने का मतलब होता है सिंपली जस्ट टू बी ओनर ऑफ समथिंग, किसी पे मालिकाना हक रखना, किसी की ओनरशिप रखना, किसी पर राइट रखना, ये होता है पजेस करने का मतलब। ठीक है ना? जैसे जैसे ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें जो वर्ड आ रहा है ना मेरा, ये मेरा शब्द बता रहा है कि इसमें मेरा मालिकाना हक है ना, मैं ओनर हूँ इसका। तो मेरा शब्द इसका पजेशन दिखा रहा है मेरे साथ। ठीक है ना? तो माय मोबाइल, माय जो वर्ड है वो मेरा पोजेशन दिखा रहा है इसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर मेरा अधिकार है। ठीक है? ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी बाइक है। तो ये जो है मेरा या आपका, ये पोजेशन दिखाने वाले शब्द हैं जो ये दिखाते हैं कि ये चीज का अधिकार किसका है, ये चीज किसको लिंक करती है, किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना? अब जैसे आप बोले ये वाला सेंटेंस जरा बनाएंगे ऐसे भी लोग, ये मेरा मोबाइल है, कैसे बनाएंगे हम ये सेंटेंस? देखते हैं क्या आप बना सकते नहीं बना सकते। छोटे सेंटेंस बचपन में फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में सिखाए जाते हैं। ये मेरा मोबाइल है, कैसे बनाएंगे हम इसको? चलो, एक का आ गया, दिस इज माय मोबाइल या दिस इज माय फोन। ठीक है, दिस इज माय मोबाइल, सही है, सही है, सही है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये मेरे मोबाइल्स हैं, ये मेरे मोबाइल्स हैं, इसको कैसे बनाएं?
कृति होशियार हो गई है, कृति का सेंटेंस आ गया है, फातिमा का भी आ गया है, और फातिमा और कृति सॉरी अजय के सेंटेंस में जरा सी गड़बड़ हो गई, बाकी तो सही बनाया उन्होंने, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पता कर सकते हैं क्या गड़बड़ है? कृति का ठीक है, कृति इज गुड नाउ। यस, सही समझे। भाई जब बात कर रहे हैं ज्यादा मोबाइल्स की, तो मोबाइल्स में भी ज्यादा बताना पड़ेगा ना, है ना? तो दीज आर माय मोबाइल्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ लोग तो शांत बैठ गए। अब अभी हमने लिखा है कि अभी गड़बड़ होने के चांस लग रहा है। क्यों कुलसुम? राइट द सेंटेंस ऑलवेज, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। जब एक था तो उसके लिए दिस लगाया, और दिस के साथ सिंगुलर में इज लगेगा, दिस इज माय मोबाइल। जब ज्यादा थे तो दिस की जगह दीज का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल? दीज का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे लगाया भी है। और चूंकि ज्यादा कुछ शो कर रहा है तो अब इज नहीं लगेगा, ज्यादा के लिए आर लगता है। ऐसे करके आप थोड़ा सा और चेंज करते हैं। वो मेरा मोबाइल था, कैसे बोलूंगा? वो मेरा मोबाइल था। वो मेरा मोबाइल था। फातिमा का सेंटेंस आया, क्या सेंटेंस है? दोस वाज माय मोबाइल। अजय का आया दैट वाज माय मोबाइल। देखते हैं कौन सा ठीक हो सकता है। फिर फातिमा का आया दैट वाज माय मोबाइल। चलो ठीक है, आगे आगे आगे। यू आर कंफ्यूज, कोई बात नहीं, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, रिमूव योर कंफ्यूजन। मैं आपकी हेल्प करता हूँ अभी। और बाकी लोग वो क्या बोल रहे हैं? दो लोगों के सेंटेंस आए हैं, फातिमा अजय के। प्रति सेंटेंस है, अब सॉरी, सेंटेंस है वो मेरा मोबाइल था। वो मेरा मोबाइल था, दिस इज द सेंटेंस। It was my mobile। चलो तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे आप पास्ट की बात कर रहे हैं या दूर की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। तो दिस और दीज प्रेजेंट में सिंपली पास्ट के लिए होते हैं। दूर की बात है, पास्ट की बात करें तो आपको दूसरे शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और वो फिर होंगे दैट एंड दोज। दैट एंड दोज, यहाँ पे सिंगुलर के लिए आपको दैट का इस्तेमाल करना, प्लूरल के लिए दोज का इस्तेमाल करना है। दैट्स कोई भी वर्ड नहीं होता। गैलेक्सी J5 वाले भाई साहब और बहन जी जो भी हैं आप, तो दैट्स कोई भी शब्द नहीं होता। सिंगुलर है तो दैट होगा, और प्लूरल है तो दोज होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं वह मेरा मोबाइल था, तो दैट वाज माय मोबाइल इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक। अगर मैं बोलूं वो मेरे मोबाइल्स थे, वो मेरे मोबाइल्स थे, तो वो क्या बनेगा? वो मेरे मोबाइल्स थे। किसका सेंटेंस आया है? ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, बाकी सब ठीक है। फातिमा, फातिमा जरा सी मिस्टेक हुई है। वो मेरे मोबाइल्स थे। दोज वर माय मोबाइल्स। हाँ, बस में प्लूरल की बात कर रहे हैं ना, प्लूरल दिखाना भी पड़ेगा। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। तो दोज वर माय मोबाइल्स, ये ऐसे करके सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, दोज वर माय मोबाइल्स। अंडरस्टैंड? सो वेल, बढ़िया है ना, कुछ भी दिक्कत तो नहीं है समझने में, आ रहा होगा मेरे ख्याल से। या अभी देखो, ये तो आपने बता दिया है, अभी इन सेंटेंस में आपको बता रहे हैं कि ये मेरी चीज है, मतलब बता रहे हैं किसकी चीज है ये। लेकिन कई बार हमें प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं ये जानने के लिए ये चीज है किसकी। ये तो आंसर है जो आप लिख रहे हो, प्रश्न कैसे बनेंगे? तो ये जानने के लिए चीज किसकी है, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल में आता है। और वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा होता है, कोई जानता है? पोजेशन पूछने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल में आता है? एनीबडी नोस? एनीबडी? कोई जानता है वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा होगा जिससे हम पता करते हैं कि चीज किसकी है? पोजेशन जानने वाला क्वेश्चन वर्ड।
नहीं, whom नहीं होता, who is, तो who is कोई क्वेश्चन वर्ड थोड़ी होगा, who होगा क्वेश्चन वर्ड। तो इस कैसे लगे, इस तो वो सिचुएशन के हिसाब से लगेगा। नहीं, मुझे लगता है ऐसे ना कुछ लिखना चाह रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो मैं बताता हूँ। दैट क्वेश्चन वर्ड इज, दैट क्वेश्चन वर्ड इज whose, who is नहीं whose। ये whose जो होता है ना, ये ये दिखाने के काम में आता है कि चीज किसकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है पोजेशन जानने के लिए। whose कौन सा है, whose, यस। ठीक है, अब देखिए मैंने पेन का एग्जांपल लिया, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर मैं सिंगुलर के लिए पूछूंगा ये किसका पेन है, तो बनेगा whose पेन, बाकी वही इज दिस, है ना। आप बोलते ना दिस इज माय पेन, तो यहाँ पे बस माय नहीं लगा, माय तो बता रहा है कि मेरी चीज है। अब चूंकि हमें जानना है किसकी चीज है, तो माय की जगह हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड whose, जो ये बताएगा किसकी चीज है। बाकी सब वही बचा हुआ आ गया, पेन इज दिस, whose पेन इज दिस। ऐसे करके मैं ज्यादा के लिए करूंगा ये किसके पेन्स हैं, तो हो जाएगा whose pens प्लूरल, और ज्यादा के लिए आर, और दिस की जगह दीज। ठीक है, अगर मैं इसको पास्ट में पूछूंगा ये किसका पेन था, whose pen was that, मैंने अभी ये सेंटेंस बनवा दिया आपको। और पास्ट में प्लूरल पूछूंगा तो whose pens were those। चेक आउट, चेक आउट, चेक करें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। बाकी सब कुछ वैसे ही वैसा है। पहला वाला सेंटेंस दिस इज माय पेन, माय की जगह whose लग गया क्योंकि अब हमें पता नहीं किसका है। बाकी पेन इज दिस वैसे का वैसा आ गया। सिंगुलर प्लूरल सब कुछ वैसे किया है जैसे अभी आपने कुछ सेंटेंस बनाए थे। देखो क्या इसके आधार पर आप बहुत सारे और सेंटेंस बना सकते हो। आप ट्राई करें बनाकर, चलो बनाकर देखते हैं। वो किसका मैसेज है, वो किसका, या ये किसका मैसेज है, सिंपल ऐसे बना दीजिए, ये किसका मैसेज है। फातिमा का सेंटेंस सबसे तेजी से आया, 5G चल रही है फातिमा, बाकी सब अभी 3G और 2G का काम कर रहे हैं। Whose message is this, अजय का आ गया whose message is this, बिल्कुल सही है। whose message is this बिल्कुल सही कृति। ठीक है, चलो अगर इसी को हमें थोड़ा सा चेंज करना हो, मैं पूछूं ये किसके मैसेजेस हैं, ये किसके मैसेजेस हैं, तो क्या बनाएंगे। whose messages are these, बिल्कुल सही पहुंचे आप सभी लोग। whose messages are these, बिल्कुल ठीक है। वो किसका मैसेज था, कुलसुम आपका सेंटेंस नहीं आ रहा है, वो किसका मैसेज था। वो किसका मैसेज था, whose message was that, सही बात है, बिल्कुल ऐसे बनेगा whose message was that। और नेक्स्ट हम बनाए, वो किसके मैसेजेस थे। whose messages were those, बस ठीक है, सही है, करें सेंटेंस। तो होप सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ ऑल द थिंग्स, बढ़िया है, दैट्स गुड। अभी आपको इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई माइंड में प्रश्न आ रहा हो तो मुझसे पूछिए। मेरे ख्याल से बाकी जितना मैंने समझाया आपके समझ में आ चुका है। ग्रेट, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी फील्स लाइक आस्किंग। नो, ठीक है, तो कुछ और लिखते हैं, ठीक है ना, फिर लिख मेरा कुछ
क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके ऊपर वर्क कर सकते हैं आप। देखो अभी तक हमने सेंटेंस जो सीखे थे वो कुछ ऐसे थे, हु कंज्यूम्स लिकर, यहाँ तक का, हु गोज टू कॉलेज, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु टेल्स अ लाई। अभी हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया, विद यू को और ऐड कर दिया। विद यू से कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस थोड़े से बड़े सेंटेंस हो गए। हु कंज्यूम्स लिकर विद यू, आपके साथ कौन शराब पीता है ना, बता देना। माय फ्रेंड कंज्यूम्स लिकर विद यू। हु इज लुकिंग आफ्टर योर बिजनेस विद यू। लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना, मतलब आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपके साथ कुछ और भी लोग हैं जो देख रेख करते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, हु इज लुकिंग आफ्टर योर बिजनेस विद यू। आपके साथ आपके बिजनेस की कौन देख रेख कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु विल फेंस द गार्डन विद यू। आपके साथ गार्डन कौन फेंस करेगा। फेंस करना क्या होता है, देखो गार्डन जो होता है ना, गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं, कभी आप झाड़ियां लगा देते हैं, कभी आप जाली से लगा देते हैं, कभी लोहे के तार बांध दिए जाते हैं, तो बाउंड्री क्रिएट करते हैं, उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो हु विल फेंस द गार्डन विद यू। नेक्स्ट वन, हु वॉच्ड मूवी विद यू। आपके साथ मूवी किसने वॉच की थी। अगला है, whose मोबाइल इज दिस, आसान वाले हैं। whose messages are these, whose book was that, and whose mail were those। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब कोई डाउट लग रहा हो पूछिए मुझसे, बेशक पूछिए। एनी द क्वेश्चन कम्स, बेशक पता करिए। एनी क्वेश्चन गाइस, इनको लिख लीजिए, बनाइएगा सेंटेंस, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नाउ इफ यू फील लाइक आस्किंग यू कैन आस्क मी, और नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर हम चलते हैं, तो कल फिर सुबह मिलेंगे 8 बजे आपसे। ओके एवरीवन, any question? No, fine, then we'll see you tomorrow at 8 o'clock. Have a very great time. Bye bye, ciao। कल से कहता ना ciao हमने।